Hello, Lisa. Hi, Batul. How are you feeling? You feeling better? Much better. Much Much better. better. Much better. Wow, thank you. Thank you. Thank you. Thanks all to you. No, not me. It's your power. You have to just call upon your power. That's it. It's your power. Yeah. I'm feeling so happy. Hello, Insia Ben. How are you? So Insia Ben is actually in Dubai. She doesn't attend our session because of her timings. But I think she's attending today because of I think time suits her. How are you, Insia Ben? How are you doing today? Unmute yourself. Hi, how are you? I'm totally fine. How about you? Yeah, fine. Are you feeling better with the practices? Yes. You're doing the practice, right? Every day. Every Yeah. day. Very nice. And anything you want to share with us? Any improvement in your daily life or anything? Yeah, now I'm aware of everything. Means I told you the last time also that when something is going on, I'm just aware that I have to stop thinking negative and start thinking positive. Like I start to know every time. And I was doing EFT from some time, 1 or 2 years I'm doing EFT. So that has calm. It's calm down everything. Okay. Yeah. Okay. Perfect. And are you practicing gratitude? Yes. Please practice gratitude. That is much more important than anything else. So I would always suggest you guys कि जितना हो सके ग्रेटिट्यूड, जैसे हाँ आप सेशन में तो करते हो मेरे साथ, हम लोग सब साथ में मिलके ग्रेटिट्यूड का जितना हो सके इन डेप्थ ग्रेटिट्यूड करते हैं हम किसी भी चीज के ऊपर, बट उसके बाद पूरे दिन में भी वो ग्रेटफुलनेस में रहना वो बहुत ज्यादा जरूरी है. जितना हो सके वो ग्रेटिट्यूड के अंदर अपने आप को रखना, एक एक मोमेंट में शुक्राना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना हम नेगेटिविटी में जाएंगे इतना ही हम अपने सपनों से दूर जाते हैं. और नेगेटिविटी आई, आप अवेयर हो कि हाँ ये नेगेटिविटी है, एंड देन यू आर ट्राइंग टू कम आउट ऑफ दैट, एंड दैट इज योर परसेवरेंस. कि जितना भी कुछ भी हो जाता है आप हमेशा अपने आप को वापस पॉजिटिविटी में लाते हो. तो दैट इज हाउ इट्स गोइंग टू पे ऑफ. धीरे आपका लेवल बढ़ता जाएगा. एंड यू विल before I used to get irritated, and I was getting so much anxious if some meeting is there or I have to go out. I was so anxious, but now I'm so calm, and I think everything is going to be all right, and everything gets all right. It's perfect every time. हाँ, जो हमारे सोच है वही हमारा संकल्प होता है. मतलब जो सोच है उसी के मुताबिक सब काम होता है. Yeah, so when I you just plan from that this will happen, like everything will be all right, everything will be magnificent, and that everything becomes magnificent. yes. So thank you जैसे very much, मैजिक बुक Alifia. में होता है ना कि हमेशा वैसे भी कुछ काम करने से पहले भी अगर ये सेशन है तो दिस सेशन इज. हाँ, अच्छा, वाओ, दैट्स योर मैजिक रॉक. हाउ नाइस. Amazing. So keep practicing it, and I'm so glad to see you, Hatim, here, who are never in the session because of the timing. So I'm very happy to see you. See both of you, क्योंकि कविता जी, बतूल, इन लोगों को देखने को मिलता है. And this session for how much time? This book reading just now? Right now, whatever you guys say, I'm free. Whatever you all. Now again, this is my dinner time. Okay, so let's start, and we will do it for half an hour maybe. If they come home, I'll just leave the meeting. I can see the recording is there, no? Yeah, recording is there. Yes. Okay. I just wanted to I'll upload call that him today for this session.
And I'm so happy to see you. So happy. Thank you. Thank you for coming. Thank you. Congratulations on your achievement also. Oh, thank I you. read- Thank you. Thank you so much. थैंक यू. आप सब लोगों का प्यार है और कुछ नहीं है. वैसे कोई And ऐसी बड़ी all the participants or everyone share their reviews, and it's very nice because it helps us very much. हाँ. Thank you. Thank Thank you. you so much. Okay, so let's start from here. All problems are illusions of the mind. यहाँ से अब तक हमने यहाँ तक पढ़ा था कि कैसे हम माइंड के चंगुल में हमेशा फंसे रहते. जैसे इंसिया जी ने अभी बताया कि नाउ शी इज अवेयर कि क्या चल रहा है. थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस आ गई है, बहुत पहले से ज्यादा अवेयरनेस हो गई है कि हाँ मुझे ये नहीं सोचना है और मुझे इस तरह से सोचना है. तो दैट इज योर ओन अवेयरनेस which is getting you can say which is getting activated. बट उसको बार बार हमें लाना पड़ता है क्योंकि हम मोस्टली माइंड के चुंगल में फंस जाते हैं. कहीं ना कहीं पे हमें माइंड हमेशा ऑक्यूपाइड रखता है, कोई ना कोई चिंता में, कोई ना कोई थिंकिंग में, या तो. और हमेशा वो थिंकिंग कहाँ से आती है? एक तो ये फर्स्ट चीज हमें बहुत अच्छे से समझना है कि टाइम जो है वही इल्यूजन है. अगर मैं अभी यहाँ पे हूँ, ये प्रेजेंट मोमेंट में हूँ, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स है ही नहीं. अगर ये मोमेंट में अगर हूँ, प्रॉब्लम्स वहां वैसे कहाँ से आते हैं? पास्ट में से, या तो फ्यूचर को लेके एंग्शियस होना, वहां पे ही प्रॉब्लम है. इसका मतलब क्या होता है कि जहां जहां पे टाइम है वहां वहां पे प्रॉब्लम्स है. टाइम का पूरा फैक्टर अगर हम निकाल दे अपनी लाइफ में से, तो फिर वहां पे कुछ भी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. अगर प्रेजेंट मोमेंट में देखने जाए तो ये मोमेंट के अंदर अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, मैं जैसे ही मेरा माइंड आएगा वापस, वो कहाँ से लेके आएगा, या अरे अच्छा तुझे तो 1 घंटे के बाद ये काम करना है, या तुझे अभी डिनर सर्व करना पड़ेगा, या जो भी. तो वो क्या होगा, इवन 1 मिनट के बाद का भी कुछ है, या 1 सेकंड के बाद का भी कोई थॉट है, तो वो क्या हो गया? फ्यूचर हो गया. 1 सेकंड के पहले का भी जो थॉट था वो भी क्या हो गया? वो पास्ट हो गया. तो ये दोनों पास्ट एंड फ्यूचर वो हमेशा हमें ऑक्यूपाइड रखते हैं. इसलिए हम कभी भी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं आ पाते हैं. एंड ऑल बिकॉज ऑफ द टाइम. टाइम इज इल्यूजन एक्चुअली. जब हम ये टाइम का इल्यूजन समझ जाएंगे, यानी बरसों का है, कलेक्टिव ये थॉट है कि टाइम है वहां पे, बरसों का. जैसे मैं यहाँ पे बरसों का भी बोलती हूँ तो हमारे माइंड में टाइम का एक आता है कि बरसों यानी बहुत साल लगे, इस टाइप का हमें कुछ आता है. बट अगर हम देखने जाए कि बरसों के पहले भी अगर कुछ हुआ था, तो वो उस टाइम पे किस मोमेंट में हुआ था? नाउ मोमेंट में हुआ था. अगर मैं पास्ट का कुछ भी सोचती हूँ, मान लो मैं कल सोचती हूँ कि कल मेरे साथ ये ऐसी कोई घटना बनी, अगर वो घटना हुई थी तो पर कल तो वो किस टाइम पे हुई थी? नाउ मोमेंट में हुई थी. अभी वो मैं उसको पास्ट की तरह देख रही हूँ, बट वो हुई थी तो नाउ मोमेंट में. तो यानी पूरा ही ये जो टाइम है ना, इल्यूजन है. धीरे 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 अगर समझेंगे तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स या तो पास्ट में है या तो फ्यूचर में है. प्रेजेंट मोमेंट में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. फिर यहाँ पे एकार्ट टोल से किसी ने पूछा कि नहीं, अगर मेरी प्रेजेंट सिचुएशन ही खराब है और उसमें ही मुझे अनहैप्पी फील हो रहा है, तो उसके मैं क्या करूं? बट अगर मैं फ्यूचर के बारे में सोचता हूं तो दैट कीप्स मी गोइंग, बिकॉज आई हैव अ होप कि हाँ फ्यूचर में अच्छा होगा कुछ ना कुछ, यानी फ्यूचर में वो सिचुएशन सुधर जाएगी. बट नहीं, ऐसा नहीं है. अगर अभी भी आप वो सोच रहे हो फ्यूचर के बारे में, दैट इज ऑल्सो टाइम. अगर आपको कोई सिचुएशन अभी अनहैप्पी भी बना रही है, दैट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम योर पास्ट. अगर प्रेजेंट मोमेंट में देखने जाओ तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. तो ये थोड़ा सा मैंने रिवाइज किया, जो हमने जब जो अब तक पढ़ा था, थोड़ा सा रिवीजन हो गया. सो नाउ लेट्स रीड फ्रॉम हियर. एनीबडी वांट्स टू रीड टुडे? All problems are illusions of the mind. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बट आई वुड लाइक टू रीड अगेन. तो अगर किसी को पढ़ना है तो, अदरवाइज आई कैन. ओके हातिम, ओके लेट्स रीड. All problems are illusions of the mind. It feels as if a heavy burden is it feels as if a heavy burden has been lifted.
a sense of lightness. I feel clear, but my problems are still there waiting for me, aren't they? They haven't been solved. Am I just temporarily evading them? Am I If you- not just temporarily evading them? यानी मैं क्या उससे भाग तो नहीं रहा हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो है. चलो यहाँ पे तो मुझे हैवी बर्डन लिफ्ट हो चुका है. यानी ये किसी ने एकार्ट से पूछा है ये क्वेश्चन कि प्रॉब्लम्स तो वहां पे है ही. फ्यूचर में जो प्रॉब्लम, मनी का प्रॉब्लम है अभी, या मेरे पास कोई हेल्थ का इश्यू है, हेल्थ प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम तो है. अगर मैं सोचती नहीं हूँ कि टाइम नहीं है, वहां पे इल्यूजन नहीं है, यानी ये सब इल्यूजन है, तो क्या मैं प्रॉब्लम्स को इवेड कर रही हूँ, भाग रही हूँ प्रॉब्लम से? ऐसा कुछ किसी ने पूछा है. लेट्स रीड क्या उन्होंने आंसर दिया. Shall I read? या गो कंटिन्यू प्लीज. If you found yourself in paradise, it wouldn't be long before your mind would say yes, but ultimately, this is not about solving your problems. It's about realizing that there are no problems, only situations to be dealt with now, or to be left alone and accepted as part of the isness of the present moment until they change or can be dealt with. Problems are mind made and need time to survive. They cannot survive in the actuality of the now. Focus your attention on the now and tell me what problem you have at this moment. यानी ये अगर ये हमें समझ में आ जाए पूरी तरह से, आई मीन या इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट एंड प्रैक्टिस, बट धीरे 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 अगर हम अपने आप को बार बार प्रेजेंट मोमेंट में लाते हैं, अपनी प्रेजेंट अवेयरनेस में हम अगर बार बार आएंगे, तो धीरे 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 हमें समझ में आएगा कि हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स है वो ऑल आर माइंड मेड, यानी हमें माइंड ने ही क्रिएट किए हुए हैं वो प्रॉब्लम्स. और अगर उनको चाहिए, अगर वो सरवाइव करना चाहते हैं वो प्रॉब्लम, तो हमें अपना फोकस उनको देना पड़ता है. यानी टाइम, इट नीड्स टाइम टू सर्वाइव. टाइम टू सर्वाइव मीन्स अगर मुझे अभी कोई प्रॉब्लम मान लो याद आता है, अगर मैं प्रॉब्लम को बार बार अपना फोकस, बार बार अपनी एनर्जी दूंगी, देन हाँ वो प्रॉब्लम है वहां पे. बट मैंने मान लो वो प्रॉब्लम को कि मैंने देखा कि वो माइंड ला रहा है, ओके माइंड ला रहा है, what I need to do, I need to bring myself into this moment, particular this like अभी जो मोमेंट है इसमें अगर मैं लाती हूँ तो वहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो भी प्रॉब्लम्स है सभी प्रॉब्लम्स माइंड मेड है. और अगर प्रॉब्लम है, या प्रॉब्लम तो है, हम इवेट नहीं करना चाहते उसको, यानी प्रॉब्लम को फेस करें, बट उसको इजनेस ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट में अगर एक्सेप्ट कर लिया जाए, तो फिर वहां पे कुछ भी प्रॉब्लम है ही नहीं. आप देखोगे कि आप जैसे ही प्रेजेंट मोमेंट में आते हो, आपके जो सारे जो ये माइंड के ईगो के क्रिएटेड होते हैं प्रॉब्लम्स, या माइंड के बॉडी के कुछ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, या बहुत कुछ होता है, ये सब सब कुछ माइंड ने ही क्रिएट किया होता है. वो ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएगा. अगर आप अपने आप को बार बार प्रेजेंट मोमेंट में लाओगे तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा. तो लेट्स अगेन, यहाँ पे इन्होंने पोस्ट करने को बोला है, तो लेट्स ऑल डू इट. यहाँ पे हम 1 मिनट के लिए एक साइलेंस में थोड़ा जाएंगे और प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को लाएंगे, और ये चीज को समझना ट्राई करेंगे कि यहाँ पे बोल क्या रहे हैं. अगर टाइम नहीं है, ये सब प्रॉब्लम्स है अगर, तो उसको टाइम चाहिए सर्वाइव करने के लिए. अगर प्रेजेंट मोमेंट में हूं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. तो लेट्स ट्राई टू एब्जॉर्ब दिस थिंग. लेट्स डू इट. ओके, सो यहाँ पे
हमने देखा कि हम अपने आप को प्रेजेंट में ला रहे, बार बार वापस थॉट्स आ जाते हैं, बट एक टाइम आता है कि वो थॉट्स थोड़े से शांत हो जाते हैं। तो यही हमें प्रैक्टिस करनी है। देखो, जितना आप अपने आप को अवेयरनेस में लाते जाओगे, जितना आप प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को लाओगे, बार बार आपको अपने आप को क्या पूछना है, एम आई अवेयर? बस यही एक चीज आपको पूछनी है अपने आप को बार बार, एम आई अवेयर? क्योंकि ये माइंड कभी भी अवेयर नहीं हो सकता, अपने आपकी अवेयरनेस ही होगी जो अवेयर होगी उस टाइम पे। जितनी बार आप ये पूछोगे एम आई अवेयर, आप वहां पे प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओगे। फिर माइंड तुरंत ही उसको वापस ऑक्यूपाई कर लेगा, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आप अपना कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाइए जिसके आप अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में बार बार लाते हो। एंड फिर आप देखोगे धीरे 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 आगे चल के क्या होता है, आपका जो माइंड का जो नॉइस है ना, वो धीरे 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 कम होने लगेगा। अभी आपका माइंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी लेके आता है, ये वो बहुत कुछ लेके आता है, बट धीरे धीरे क्या होगा, उसका नॉइस कम होता जाएगा। और कोई भी थॉट पैटर्न है, कुछ थॉट पैटर्न से मान लो चल रही है, सुबह से कुछ चल रही है, बार बार माइंड वहां पे लेके जाता है, फिर वापस आप अपने कुछ किसी और काम में उलझते हो, फिर वापस वहां पे माइंड लेके जाता है। बट जैसे ही आप पूछोगे एम आई अवेयर एंड आप अपने आप को प्रेजेंट में लाओगे, वो जो थॉट जो पैटर्न चल रही होगी थॉट प्रोसेस की, वो पैटर्न वहां पे ब्रेक हो जाएगी। आपको वो पैटर्न को बार बार ब्रेक करना है, अपनी माइंड की पैटर्न्स को। कहीं ना कहीं पे वो ईगो से कुछ चीजें लाएगा कि अरे इसने कैसे ऐसे बोल दिया, या इसने मेरे साथ ऐसा किया, अरे मुझे तो बहुत सैडनेस फील हो रही है क्योंकि इसने ऐसा किया था पास्ट में, या फिर मे भी काम को लेके कि यार ये काम मैं अच्छे से नहीं कर पाई, या मुझे तो इतने सारे काम पड़े हैं करने को। ये सारी चीजें माइंड की पैटर्न चलती ही रहती है पूरा दिन, पूरे मतलब पूरी लाइफ चलती रहती है। बट जैसे ही आप अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लाओगे, ये ब्रेक होती जाएगी पैटर्न्स, और नॉइज भी आपका माइंड का जो है वो कम होता जाएगा। सो लेट्स रीड फर्दर। यहाँ पे आई एम नॉट गेटिंग एनी आंसर, यहाँ से रीड करना। Sorry, I'm not getting any answer because it is impossible to have a problem when your attention is fully in the now. A situation that needs to be either dealt with or accepted. Yes. Why make it into a problem? Why make anything into a problem? Isn't life challenging enough as it is? What do you need problems for? The mind unconsciously loves problems because they give you an identity of sorts. This is normal and it is insane. Problem means that you are dwelling on a situation mentally without there being a true intention or possibility of taking action now, and that you are unconsciously making it part of your sense of self. You become so overwhelmed by your life situation that you lose your sense of life, of being, or you are carrying in your mind the insane burden of 100 things that you will or may have to do in future instead of focusing your attention on the one thing that you can do now. तो यानी यहाँ पे क्या बताया कि जो भी अगर प्रॉब्लम भी है आपकी लाइफ में, लाइफ इटसेल्फ इज अ चैलेंजिंग इनफ, और प्रॉब्लम कुछ आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखना कि प्रॉब्लम में क्या होता है, प्रॉब्लम के अंदर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, बट तो भी आप प्रॉब्लम के ऊपर इतना ज्यादा ड्वेल कर रहे हो और इसमें इतना अनकॉन्शियस हो जाते हो, वो प्रॉब्लम के साथ इतना ज्यादा आइडेंटिफाई हो जाते हो कि आप भूल ही जाते हो कि आपका बीइंग क्या है। यू लूज योर सेंस ऑफ लाइफ, ऑफ बीइंग, कि आप कुछ और हो, आप ये प्रॉब्लम नहीं हो, आप ये माइंड नहीं हो, आप ये बॉडी नहीं हो, आप कुछ और हो। बट आपका सेंस ऑफ बीइंग का जो है उसके साथ आप बहुत दूर चले जाते हो जब आप वो प्रॉब्लम के साथ खुद आइडेंटिफाई हो जाते हो। और देखो, माइंड हमेशा प्रॉब्लम को लाएगा। क्यों? क्योंकि माइंड का जो ईगो है उसको भी तो कोई आइडेंटिटी चाहिए ना, अदरवाइज तो इट विल थ्रेटन माइंड। माइंड को थ्रेट लगेगा कि मेरे पास तो कोई आइडेंटिटी नहीं है। माइंड के ईगो को थ्रेट होता है, इसीलिए वो आपको कहीं ना कहीं से उठा उठा के बार बार देखोगे, आपको वो प्रॉब्लम लाएगा।
कुछ ना कुछ ईगो से प्रॉब्लम लाएगा, आपकी पर्सनालिटी को लेके कुछ कुछ प्रॉब्लम्स लाएगा, आपको माइंड, आपकी बॉडी को लेके, आपके फ्यूचर को, आपको पास्ट में से, आपके रिश्तों में से, सभी रिश्तों में अगर प्रॉब्लम है तो समझ लेना कहीं ना कहीं पे ईगो के साथ हम आइडेंटिफाई हो रहे हैं, इसलिए वहां पे ये प्रॉब्लम है। मैंने अपने ही ईगो का कल एक चीज मैंने देखी, बट वो मैं इसीलिए वो कैच कर पाई क्योंकि मैं कहीं ना कहीं पे अपने आप को बार बार अवेयरनेस में ला रही थी। अदरवाइज सिचुएशन जिस तरह से आई, मैं वो ईगो के साथ पूरी तरह से आइडेंटिफाई भी हो गई, मैंने रिएक्ट भी कर दिया इनफैक्ट। तो ये रिएक्शन, बट फिर मैंने देखा कि अच्छा अगर ये मेरा रिएक्शन आ रहा है तो कहीं ना कहीं पे फिर मैंने इसको देखा कि वो रिएक्शन क्यों आया, मैंने उसको एनालाइज किया, क्योंकि बाहर से कुछ नहीं है, अंदर ही है, इसीलिए बाहर भी सिचुएशन आ रही है। इट्स ऑलवेज फ्रॉम इनसाइड आउट, इट्स नेवर फ्रॉम आउटसाइड इन। तो अगर कुछ सिचुएशन आई और मैं रिएक्ट कर रही हूँ इस तरह से, अपने ईगो के साथ मैं पूरी तरह से आइडेंटिफाई हो रही हूँ, कहीं ना कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है अंदर ही, बाहर कुछ नहीं है। फिर धीरे 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 थोड़ा डिग डीप किया तो पता चला कि अच्छा कहाँ से है। थोड़ा अपने आप को अवेयरनेस में लाने के बाद कुछ कुछ एहसास हुआ कि हाँ ये प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई है, कैसे आई है, कैसे मैं इसके साथ अटैच हो रही हूँ अपने ईगो के साथ। तो ये सब हम तो ही कर पाएंगे जब हम अवेयरनेस में होंगे, नहीं तो हमारी लाइफ तो ऐसे चल ही रही है, बरसों से हम वो ईगो के साथ ही चल रहे हैं, वो ईगो के साथ ही आइडेंटिफाई हो रहे हैं बार बार। बट हम जितना अपने आप को ये प्रेजेंट मोमेंट में लाएंगे, वो ईगोइस्टिक माइंड को हम समझ पाएंगे वहां पे। और ये बहुत, मुझे नहीं पता हाउ लॉन्ग दिस जर्नी विल बी, बट हमारा एक ही काम है, जितना हो सके अवेयरनेस में रहना, दैट्स इट। तो लेट्स रीड फर्दर। व्हेन यू क्रिएट अ प्रॉब्लम, यू क्रिएट पेन। When you create a problem, you create pain. All it takes is a simple choice, a simple decision. No matter what happens, I will create no more pain for myself. I will create no more problems. Although it is a simple choice, it is also very radical. You won't make that choice unless you are truly fed up with suffering, unless you have truly had enough. And you won't be able to go through with it unless you access the power of now. If you create no more pain for yourself, then you create no more pain for others. You also no longer contaminate the beautiful earth, your inner space, and the collective humans psyche with the negativity of problem making. तो देखो यहाँ पे फिर क्या किया कि जैसे ही कोई प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम के ऊपर बहुत ड्वेल करते हैं तो कहीं ना कहीं पे इट क्रिएट्स पेन। अगर मैं अपनी बात करूं तो कल कोई चीज थी जिसकी वजह से अगर मैं प्रॉब्लम के साथ वापस मेरा माइंड लेके जा रहा है, मैं अगर आइडेंटिफाई भी हो रही हूँ प्रॉब्लम के साथ, तो इट क्रिएट्स पेन ऑफ कोर्स। बट आपके पास सिंपल चॉइस है, आपके पास सिंपल डिसीजन है। नो मैटर व्हाट हैपेंस, आई विल क्रिएट नो मोर पेन फॉर माई सेल्फ। तो जितना हम अपने आप को प्रेजेंट में लाएंगे, अपने प्रॉब्लम्स को हम इतना फिर एनर्जी नहीं देंगे। और हम जितना अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में रखेंगे, पॉजिटिविटी में रखेंगे, इतना ही हम अपने ये पूरे प्लैनेट अर्थ को, ब्यूटीफुल जो ये यूनिवर्स है, ब्यूटीफुल यूनिवर्स, उसको हम पूरी तरह से एक हमारे इनर स्पेस को जितना हम क्लीन एंड क्लियर रखेंगे, तो वो कलेक्टिव ह्यूमन साइकी को भी जो हम नेगेटिविटी देते रहते, देखो हम सबकी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी भी वापस कलेक्टिव एनर्जी की तरह काम करती होती है। अगर आज मैं ये नेगेटिव थॉट क्रिएट कर रही हूँ बार बार कि यार कोरोना इतना फैल रहा है, कोरोना ये हो रहा है, कोरोना ये हो रहा है, सबको सब इतने बीमार हो रहे हैं, अगर मैं अकेली अभी ये नेगेटिव थॉट क्रिएट करती हूँ, यानी मैं समाज के नेगेटिव थॉट को भी कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। जो समाज ये नेगेटिव थॉट्स खड़ा कर रहा है, बार बार वापस वहां बाहर में देख रही हूँ कि ये नेगेटिव थॉट्स क्रिएट हो रहे, फिर मैं भी नेगेटिव थॉट क्रिएट करती हूँ और उसके अंदर मैं भी कलेक्टिव में शामिल हो जाती हूँ।
हमारे अर्थ को और नेगेटिविटी में लेके जाने के लिए मैं भी शामिल हो गई, जबकि अब मुझे कहाँ पे अपने आप को लेके जाना है, हायर 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 एलिवेट करना है मेरे अपनी सोल को, मेरे अपने आप को मुझे हायर करना है, एलिवेट करना है, सो दैट आई डोंट क्रिएट मोर पेन and I don't contribute to the negativity of this planet. तो नेगेटिविटी को हमें और कंट्रीब्यूट नहीं करना है हमारी इंडिविजुअल नेगेटिविटी के साथ। तो जितना हो सके हमें अपने आप को, अगर हम कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं या उसकी नेगेटिविटी को तोड़ना चाहते हैं, नेगेटिव पैटर्न्स को तोड़ना चाहते हैं, तो हमें बार बार अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लाना है। दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। बट हाँ, ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा हम कभी कभी आइडेंटिफाई हो जाते हैं, तब हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमें नाउ मोमेंट में आना है। इट्स ओके, जितना हो सके आप अपने आप को लाओ बार बार नाउ मोमेंट में। जब नहीं ला पाते हो तो कोई बात नहीं, अलग जो रिलीजिंग की टेक्निक्स है उसको यूज करो, बट अपने आप को जितना हो सके इतना पॉजिटिविटी में रखना है। हमेशा हाई फ्रिक्वेंसी जोन में, हाई वाइब्रेशंस में हमको अपने आप को लेके जाना है, बार 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 बार। गिरते हैं वापस उठना है, और जितनी बार गिर के वापस उठोगे आप एक 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 लेयर ऊपर चलते जाओगे, ऊपर चढ़ते जाओगे। ये आप अपने आप को देख सकते हो कि आप 1 साल पहले कहाँ थे, या जब भी अपनी ये पूरी जर्नी स्टार्ट की उससे पहले आप कहाँ थे, और आप अभी अपने आप को कौन से लेवल पे देखते हो, उससे आप ये जज कर पाओगे। तो लेट्स वन मोर टाइम लेट्स टेक अ पोज हियर। इन्होंने यहाँ पे पोज लेने के लिए बोला है, सो विल गो विद द बुक एंड लेट्स टेक अ पोज। तो ये पूरा समझते हैं कि किस तरह से हम अपनी नेगेटिविटी से पूरे प्लैनेट अर्थ को कंटामिनेट करते हैं, क्योंकि हम प्योर एनर्जी से बने हुए हैं। सभी जगह पे ये पूरी एनर्जी होती है और कुछ नहीं है, और हम ये एनर्जी में पॉजिटिव या नेगेटिव कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। चॉइस हमारे हाथ में है। Okay, so let's read further. If you have ever in a life or death emergency situation, यहाँ से read करते हैं। If you have ever been in a life or death emergency situation, you will know that it wasn't a problem. The mind didn't have time to fool around and make it into a problem. In a true emergency, the mind stops. You become totally present in the now, and something infinitely more powerful takes over. This is why there are many reports of ordinary people suddenly became capable of incredibly courageous deeds. In any emergency, either you survive or you don't. Either way, it is not a problem. तो आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं पे ये नोट किया होगा कि कभी कभी इमरजेंसी लाइफ और डेथ वाली सिचुएशन में जब हम होते हैं तो हमारा वो ट्रू सेल्फ उस टाइम पे आ जाता है, क्योंकि माइंड डिडंट हैव अ टाइम टू फूल अराउंड एंड मेक इट इनटू अ प्रॉब्लम, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं दिया था वहां पे कि हम उसका माइंड वो प्रॉब्लम में क्रिएट कर सके, यानी प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। तो इस टाइम पे क्या होता है, माइंड टोटली स्टॉप हो जाता है एंड यू टोटली बिकम प्रेजेंट इन द नाउ। एंड वहां पे इतना आप देखा, आपने कहीं कहीं पे सुना होगा कि ये इवन ये जो भूकंप हुआ था गुजरात में 2000 जब भी हुआ था, 2000 आई थिंक 2002 में या 2000 में हुआ था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, बट वहां पे हमने किसी किसी करेजियस स्टोरीज को पढ़ा होगा कि ये ऐसा था, इन लोगों ने इतने करेजियसली इसको किसी को मे बी किसी को निकाला होगा करेजियसली, या फिर किसी को कहीं ना कहीं पे खुद को बचाया होगा। ऐसी करेजियस स्टोरीज हम सुनते हैं। उसका मतलब क्या होता है कि इमरजेंसी सिचुएशन जब आई, वहां पे माइंड की कोई
प्रॉब्लम क्रिएशन था ही नहीं, इसलिए वहां पे हमारा ट्रू नेचर प्रेजेंट था और हमारे ट्रू नेचर, जो हमारा ट्रू बीइंग है, उसके पास तो अनलिमिटेड पावर है, वो कुछ भी कर सकता है। वो तो हमारे माइंड ने इतना हमें अभी ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, इसलिए वो हमारा जो ट्रू सेल्फ है वो पीछे बैठा है, शांति से देख रहा है क्या चल रहा है, बट वो ड्राइवर सीट पे नहीं है। अभी ड्राइवर सीट पे वो हमारा 5% वाला है। इन्होंने मैम ने बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल दिया था कि जो हमारा ये जो माइंड है वो एक बिल्ली की तरह है, म्याऊं म्याऊं करता रहता है पूरा दिन, उसके पास कोई पावर नहीं, ओनली 5% पावर है। और जो हमारा ये जो ट्रू सेल्फ है वो क्या है, लायन, शेर है, वो जंगल का राजा, यानी बहुत बड़ा शेर है वो। यानी बिल्ली आती है, मियाऊ 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 करती रहती है, और उसके सामने आप ही सोचो कि माइंड है, अपने प्रॉब्लम्स ला रहा है, मियाऊ मियाऊ कर रहा है, तो क्या वो शेर के सामने टिक पाएगा उसका मियाऊ मियाऊ? नहीं टिक पाएगा। इसीलिए शेर को वापस आपको बार बार लाना है। अभी शेर पीछे बैठ के देख रहा है, अच्छा बिल्ली मियाऊ मियाऊ कर रही है, वो तो अच्छा, ये एकदम फनी एग्जाम्पल मुझे लगा है, वहां यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से बैठ रहा है यहाँ पे ये एग्जाम्पल। तो हमें हमेशा अपने माइंड को इस तरह से देखना है कि ये बिल्ली है, मियाऊ मियाऊ कर रही है, बट मुझे अपने शेर को जगाना है, अपने अंदर ही है वो शेर और कहीं बाहर नहीं है। So I hope you all understand. Let's read further. A great deal of what people say, think, or do is actually. ये वाला read किया था, some people get angry when they hear me say. नहीं, skip हो गया, I guess. Sorry. नहीं, Some people get angry when they hear me say that problems are illusions. I am threatening to take away their sense of who they are. They have invested much time in a false sense of love, sense of self. For many years, they have unconsciously defined their whole identity in terms of their problems or their suffering. Who would they be without it? देखो यहाँ पे ये तो कई लोगों को ये थ्रेटनिंग लगता है, ये चीजें, ये बातें, कि ये क्या बात कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स इल्यूजन है? यानी इस तरह से एंगर आता है कि क्या प्रॉब्लम्स ही नहीं है? नहीं, इनको कहाँ पता है, हमें तो इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो यानी आपके प्रॉब्लम ने बरसों से आपको इतना अंदर जकड़ के रखा है, उस आइडेंटिटी के अंदर आपको जकड़ के रखा है कि वहां पे आप उस सफरिंग के अंदर इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हो कि आपकी आइडेंटिटी वहां पे लूज हो रही है। जब ऐसा बोलते हैं कि प्रॉब्लम्स आर इल्यूजन, इट्स जस्ट माइंड क्रिएटेड थिंग्स, तब आपकी खुद की आइडेंटिटी वहां पे एक थ्रेटन हो रही है, इसलिए आपको लगता है कि नहीं, ये तो सब बेकार की बातें हैं, ये आपका माइंड ही बताता है। सो लेट्स रीड फर्दर। A great deal of what people say, think, or do is actually motivated by fear, which of course is always linked by having your focus on the future and being out of touch with the now. As there are no problems in the now, there is no fear either. Should a situation arise that you need to deal with now, your action will be clear and incisive of it arises out of present moment awareness. It is also more likely to be effective. It will not be a reaction coming from the past. It will not be a reaction coming from the past conditioning of your mind, but an intuitive response to the situation. In other instances, when the time-bound mind would have reacted, you will find it more effective to do nothing. Just stay centered in the now. यानी कभी भी हमारा अगर रिएक्शन आता है तो मोस्टली वो पास्ट कंडीशनिंग से आता है। अगर मैं अपनी कोई बात करूं कि चलो हाँ, कल कुछ ऐसा बाहर से आया और मैंने कुछ ऐसा रिएक्ट किया, तो वो क्या था, मैंने देखा कि वो मेरी पास्ट की कुछ कंडीशनिंग है, इसकी वजह से उस तरह से मैंने रिएक्ट किया। यानी प्रेजेंट मोमेंट में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर मैं रिएक्ट भी कर रही हूँ तो अपने ही पास्ट की कंडीशनिंग की वजह से मैं रिएक्ट करती हूँ। बट अगर मैं प्रेजेंट मोमेंट में हूँ तो अपनी प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में कुछ भी करूंगी, जो भी एक्शन लूंगी, तो वो कहाँ से आएगा? वो मेरे इंट्यूशन से आएगा, और वही रिस्पॉन्स
परफेक्ट होगा मेरी लाइफ के लिए, जो मेरे इंट्यूशन से आता है, ना कि मेरे पास्ट के कोई रिएक्शन से आ रहा है। तो अभी यही हमें ये देखना भी है कि मेरा ये कोई इंट्यूटिवली गाइडेड मेरी एक्शन है या फिर मेरे पास्ट कंडीशनिंग की वजह से ये रिएक्शन है टू द सिचुएशन। ये आप कभी कभी डिसर्न कर पाओगे। मैं कभी कभी कोई सिचुएशन आती हूँ तो मैं बहुत शांत मगज से सोचती हूँ, तो मुझे अंदर से गाइडेंस मिलता है, इंट्यूशन आता है, उस तरह से मैं काम करती हूँ, मेरा काम आराम से हो जाता है। कोई सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पे बहुत इमोशनल चार्ज दिया होगा पास्ट में, तो वहां पे क्या होता है, इमोशनल रिएक्शन आता है बिकॉज ऑफ द पास्ट कंडीशनिंग। यानी अगर वहां पे मैं कोई एक्शन भी ले रही हूँ, यानी रिएक्शन तो एक्शन ही हुआ ना, कि वो रिएक्शन है, एक्शन है, बट क्या है, वो सिचुएशन के उसमें है, मतलब सिचुएशन की वजह से मैं रिएक्ट कर रही हूँ, एक्शन है वहां पे, पर मेरी पास्ट की कंडीशनिंग की वजह से एक्शन है। जबकि अगर मैं प्रेजेंट मोमेंट में आती हूँ तो वो अगर मैं कोई एक्शन लेती हूँ तो वो इंट्यूटिव एक्शन होगा, ना कि मेरा कोई रिएक्शन होगा। तो ये हमें समझना है, अ क्वांटम लिप इन द इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस। तो लेट्स रीड यहाँ पे क्वांटम लिप क्या हुआ है इवोल्यूशन कॉन्शियसनेस के अंदर। लेट्स रीड यहाँ पे। I have had glimpses of this state of freedom from mind and time that you describe, but past and future are so overwhelmingly strong that I cannot keep them out for long. हाँ, ये तो हम सबको फेस करना पड़ता है। अभी हम सब ये चीज फेस करते हैं कि हम अपने आप को मोस्टली पास्ट एंड फ्यूचर में ही अपने आप को हम पाते हैं, अपने माइंड को, बट जितना हम उसको बार बार अवेयरनेस में लाएंगे, इतना ही हम उसके चंगुल में से निकल पाएंगे। तो लेट्स रीड इन्होंने क्या यहाँ पे आंसर दिया है। The time-bound mode of consciousness is deeply embedded in the human psyche. But what we are doing here is part of a profound transformation that is taking place in the collective consciousness of the planet and beyond. The awakening of consciousness from the dream of matter, form, and separation. The ending of time. We are breaking mind patterns that have dominated human life for eons. Mind patterns that have created unimaginable suffering on a vast scale. I am not using the word evil. It is more helpful to call it unconsciousness or insanity. तो यहाँ पे अभी ये कलेक्टिव इसकी बात कर रहे हैं कि अभी ये जो क्वांटम एक लिप आ रहा है हमारे सबके कॉन्शियसनेस के अंदर। अभी पहले हम अगर कोई इसकी बात करते हैं, एनलाइटनमेंट की बात करते हैं, तो हमें लगता है कि कोई बहुत महान पुरुष ही है या बहुत महान संत महात्मा या जो भी हमें देखना है वो ही, या कोई धर्म गुरु है या जो वो ही अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट मतलब ये एनलाइटन हो सकते हैं। बट अभी ये एरा चेंज हो रहा है और यहाँ पे अभी क्वांटम लिप हो रहा है जहाँ पे अभी हम ही अपने पावर्स को देख पा रहे हैं यहाँ पे, कि थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड करने से ही हम अपनी सिचुएशन बाहर बदल रहे हैं। तो ये क्या हुआ, अंदर से फ्रॉम इनर टू आउटसाइड, तो हम देख पा रहे हैं कि हाँ यार ये तो मेरे अंदर है, पावर्स तो है, मैं बदल सकती हूँ अपनी खुद की सिचुएशन को, अपने थॉट्स को चेंज करके। हम सबने ये देखा, जैसे अभी इंसिया जी ने भी यहाँ पे शेयर किया था कि वो देखती है कि हाँ अभी जैसे ही वो थॉट्स चेंज करती है तो फिर मैग्निफिसेंट ही आता है आउटकम भी। तो हम ये सब क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि देयर इज अ वास्ट अवेकनिंग, ये पूरे हमारे प्लैनेट के ऊपर एक बहुत ही बड़ा ब्रेकिंग ऑफ द माइंड पैटर्न हो रहा है। इसलिए हमें अभी ये पावर्स एक्सेसिबल हो गए हैं, इतना इजीली अवेलेबल हो गए हमारे लिए ये पावर्स, कि हम जब भी चाहे इस पावर्स को यूज करके हम अपने सपनों की ओर बढ़ सकते हैं। जो चीज करने के लिए हम यहाँ पे पैदा हुए धरती पे, वो चीज की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। जो भी हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है उसकी तरफ हम जा सकते हैं। बट पर्पस ऑफ लाइफ भी तभी होगा जब आप अपनी लाइफ में, अपनी प्रेजेंट लाइफ के अंदर अपने आप की जो भी मतलब नीड्स है, नीड्स को जब पूरा कर पाओगे, जो भी आपकी प्रेजेंट मोमेंट के अंदर नीड्स होगी, मनी को लेके हो सकती है, रिश्तों को लेके हो सकती है,
कुछ भी हो सकती है, करियर को लेके हो सकती है, वो सारी नीड्स जब कंप्लीट होती है तब फिर हम धीरे 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 अपने पर्पस ऑफ लाइफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। बट पहले तो हमें यही समझना है कि ये सब कैसे काम करता है और कैसे हम ही अपने पावर्स को बार बार प्रेजेंट मोमेंट में लाके हम अपने पावर्स को जागरूक कर सकते हैं, अवेकन कर सकते हैं। लेट्स रीड फर्दर। This breaking up of an old mode of consciousness, or rather unconsciousness, is it something we have to do, or will it happen anyway? I mean, is this change inevitable? That's a question of perspective. The doing and the happening is in fact a single process, because you are one with the totality of consciousness. You cannot separate the two, but there is no absolute guarantee that humans will make it. The process isn't inevitable or automatic. Your cooperation is an essential part of it. However, you look at it, it is a quantum leap in the evolution of consciousness, as well as our only chance of survival as a race. यस, तो यहाँ पे पूरा कलेक्टिव इवोल्यूशन हो रहा है, बट उसमें आप कैसे एसेंशियल पार्ट अपना प्ले करोगे। हमेशा ये प्रोसेस में रह के ये प्रोसेस कभी भी नहीं जाने वाली। जैसे ही आप माइंड के चंगुल में वापस चले गए, वही आपकी लाइफ स्टार्ट हो जाती है। बट आपको ये कॉन्शियस एफर्ट्स लगाने होंगे अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लाने के लिए, अपने आप को अवेयर रखने के लिए, और आप अपने आप को हमेशा पॉजिटिव चीजों में इन्वॉल्व करने के लिए, पॉजिटिव थॉट्स के अंदर इन्वॉल्व करने के लिए आपके एफर्ट्स लगेंगे। क्योंकि नेगेटिविटी में जाने में तो कोई एफर्ट्स नहीं लगते, बहुत इजी होता है, बहुत आसान होता है, इजीली चले जाते हैं हम, बट यहाँ पे एफर्ट्स लगेगा। तो ये काम करते हैं, जो बीइंग रीड कर लेते हैं, उसके बाद कंक्लूड करेंगे सेशन को। सो लेट्स रीड। Joy of being, to alert you that you have allowed yourself to be taken over by psychological time. You can use a simple uh, criterion. Is this right? Yeah, criterion. Okay. Ask yourself, is there joy, ease, and lightness in what I am doing? If there isn't, then time is covering up the present moment and life is perceived as a burden or a struggle. If there is no तो joy, यहाँ पे ये बहुत ही बढ़िया बात इन्होंने बताई है। हम स्लोली जाएंगे यहाँ पे ये बुक के अंदर, क्योंकि ये बुक को समझना और उसको रोजमर्रा की लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना है हमें। यहाँ पे हम ऐसे ही बुकिश नॉलेज नहीं लेंगे, हम उसको इम्प्लीमेंट भी करते जाएंगे, तो ही तो हम उसमें आगे बढ़ पाएंगे प्रैक्टिस की वजह से। So to alert you that you have allowed yourself to be taken over by psychological time, you can use a simple criteria. तो ये आप देख सकते हो अपने आप को मेजर करने के लिए, अपने आप को देखने के लिए कि क्या मैं अभी इस मोमेंट के अंदर जॉय, ईज एंड लाइटनेस फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि नहीं। अगर मैं नहीं कर रही हूँ, इसका मतलब है कि मैं साइकोलॉजिकल टाइम ने मुझे कहीं ना कहीं पे घेरा रखा है और इसीलिए मैं उसको एज ए बर्डन, एज ए स्ट्रगल ले रही हूँ। If there is no joy, ease or lightness in what you are doing, it does not necessarily mean that you need to change what you are doing. आपको जरूरत नहीं है कि हमेशा, यानी अगर मुझे मेरी जॉब पसंद नहीं है तो जरूरी नहीं कि मुझे मेरी जॉब ही बदलनी पड़ेगी टू फील जॉय एंड लाइटनेस। नहीं, वो मेरा स्टेट ऑफ माइंड है। जो मैं स्टेट ऑफ माइंड चेंज कर दूंगी, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाऊंगी, तो मेरा बीइंग जो है वो ऑलरेडी जॉयफुल है, ऑलरेडी लाइट है, ऑलरेडी ईज में है। तो लेट्स रीड, यहाँ से वापस रीड करते हैं। If there is no joy. if there is no joy, ease, or lightness in what you are doing, it does not necessarily mean that you need to change what you are doing. It may be sufficient to change the how. How is always more important than what. See if you can give much more attention to the doing than to the result that you want to achieve through it. Give your fullest attention to whatever the moment presents. This implies that you also completely accept what is
because you cannot give your full attention to something and at the same time resist it. ये दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकती कि आप उसको पूरा अटेंशन दे रहे हो, जैसे है वो मोमेंट के अंदर अपना पूरा बेस्ट दे रहे हो, उसके साथ साथ आप रेजिस्ट भी इसको करो, ऐसा दोनों चीजें नहीं हो सकती। अगर आपने ये मोमेंट को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये मोमेंट परफेक्ट है, अभी जो भी ये मोमेंट है, यानी अगर मैं अपने जॉब पे हूँ, मुझे काम नहीं मजा आ रहा है, तो उसी टाइम पे मैं अपने आप को व्हाट की जगह पे हाउ में चेंज कर सकती हूँ कि हाउ आई कैन गिव मोर अटेंशन टू व्हाट आई एम डूइंग। और जितना मैं अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में, वही मोमेंट में बार बार लाके वो काम करती हूँ, तो फिर वहां पे मैं एक्सेप्टेंस में हूँ, मैं कोई रेजिस्टेंस में नहीं हूँ। एक्सेप्टेंस एंड रेजिस्टेंस दोनों साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अभी हमारे मोस्टली प्रॉब्लम आप लोग मैं भी अपनी लाइफ में झांक के जब देखती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि मेरे प्रॉब्लम्स कहाँ से आते हैं, जब मैं रेजिस्ट करती हूँ। यानी कोई मोमेंट आया, मान लो नेगेटिव मोमेंट आया, तो मैं इसको रेजिस्ट करने लग जाती हूँ। मेरा माइंड का पैटर्न ही वही होता है कि मैं रेजिस्ट करने लग जाती हूँ कि यार ये क्यों आया, ये कैसे आया, ये वो इसके अंदर पूरा घुस, मतलब पूरा अंदर आइडेंटिफाई हो जाना। बट जैसे ही मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि ओके ठीक है, ये आया है ना कुछ है, इसके अंदर भी कोई रीजन है, इसलिए वो यहाँ पे आया है। जैसे ही मैं उसके साथ एक्सेप्टेंस में आ जाती हूँ, वहां पे फिर कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, यानी मैं फिर वो नाउ मोमेंट में हूँ, एक्सेप्टेंस में हूँ पूरी तरह से। और फिर वहां पे जो भी एक्शन मेरी लगेगी वो गाइडेड एक्शन होगी, ना कि रिएक्शन होगा। तो यही हमें समझना है। You all want to continue or you all want to leave? I mean, it's up to you because you all have to go to sleep. I'm okay with it. So please write in the chat box कि अगर हम ये 2 पैराग्राफ और कंप्लीट कर ले पोस्ट तक, या फिर यहाँ पे कंक्लूड कर ले सेशन को। वो एक्चुअली एक ही पैराग्राफ है। So let's read actually, let's read. As soon as you honor the present moment. As soon as you honor the present moment, all unhappiness and struggle dissolve, and life begins to flow with joy and ease. When you act out of present moment, awareness, whatever you do becomes imbued with a sense of quality, care, and love. Even the most simple action. हाँ, ये तो बहुत बार मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं अगर प्रेजेंट मोमेंट में हूँ, जॉय में हूँ, ईज में हूँ, जब मैं लाइट में हूँ, तब फिर वहां पे अगर कोई अनहैप्पीनेस या स्ट्रगल नहीं है, तो वो अगर है भी तो वो डिजॉल्व हो जाता है। अगर मैं खाना बना रही हूँ, तो अगर मैं उस टाइम पे जॉय मोमेंट में हूँ, अपने प्रेजेंट मोमेंट में हूँ, तो वहां पे अपने आप जो खाना बना रही हूँ उसकी क्वालिटी, उसके केयर, उसमें प्यार अपने आप आ जाता है, जब भी मैंने ये किया है। और ऑलमोस्ट अभी तो रोज 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 ये प्रैक्टिस हो रही है कहीं ना कहीं पे। तो हमें बार बार देखना है कि क्या मैं जो भी काम कर रही हूँ, क्या इसमें मैं ईज हूँ, मतलब ईज आउट हूँ, एकदम सहज फील कर रही हूँ, लाइट फील कर रही हूँ, जॉय फील कर रही हूँ। अगर मैं नहीं कर रही हूँ, तो मुझे बार बार अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लाना है, वो काम के अंदर उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करना है रादर देन रेजिस्टिंग इट। एंड वो सिंपल एक्शन भी बहुत केयर प्यार से भर जाएगा, जो भी होगा वो बहुत प्यार से, शुक्राना से वो मोमेंट भर जाएगा। वो वही मोमेंट रिफ्लेक्ट भी करेगा आपके काम के अंदर कि जो अगर मैंने खाना बहुत प्यार से, बहुत जॉयफुली बनाया है, तो वो खाना हमेशा टेस्टी होता है। उसमें भले मैंने बहुत सिंपल तरीके से वो खाना बनाया है, बट दैट बिकम्स टेस्टी। हम कभी कभी बोलते हैं ना कि यार मम्मी के हाथ का वो सेम चीज थी, बट मम्मी जैसे बनाती है उसमें कुछ अलग ही टेस्ट था। भले सिंपल, वही सिंपल रेसिपी मम्मी यूज करती, बट उसका अपना प्यार डालती है, तो उसकी वजह से वो टेस्ट अलग हो जाता है। तो यहाँ पे सेम चीज है, खाली खाना बनाने के बारे में नहीं, बट ऑल आवर वर्क, जो भी हम काम करते हैं उसके अंदर अगर हम प्यार से, खुशी के साथ कर रहे हैं, तो उसका फिर जो होता है आउटकम वो अलग ही आता है। So now let's again take a pause here and absorb whatever it is. Let's absorb it completely.
Okay, so let's conclude our session over here. 10 minute kar lijiye. Thank you. Yeah, I think people are sleepy. Whatever it is. Okay, that's fine. Totally fine. हम कल यहाँ से पढ़ेंगे. So do not be concerned with the fruit of your action. कभी भी हमें मुझे क्या fruit मिलेगा ये काम करने से, क्या outcome आएगा, उसके साथ कभी भी concern होना ही नहीं है. उससे कोई नहीं फर्क पड़ता. हमें अपने बस present moment में ध्यान देना है कि अगर मेरा ये मोमेंट मैंने सुधार लिया, अपने आप मेरे अगले आने वाले जो मोमेंट्स है वो अपने आप सुधर जाएंगे. बट मेरा ये जो मोमेंट है, दिस पर्टिकुलर मोमेंट should be filled with love, filled with shukrana, filled with gratitude, filled with joy, filled with happiness, and everything which is coming up will automatically be solved in a complete way. So, okay, thank you so much. Love, light, and abundance to all of you. See you all tomorrow at 3:30 p.m. Thank you. Love, Thank you light, and so abundance. much for the amazing explanation. Thank you so much. I'm Thank so you. happy, Thank you for joining. so Thank happy to be in your sessions again. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. सो देखेंगे कभी कभी बीच बीच में हम, क्योंकि हमें ये बुक भी कंप्लीट करनी है, तो ऐसे करेंगे कि शाम को रात को ले लेंगे. तो आप जो लोग हो जो सेशन में वैसे प्रेजेंट नहीं हो पाते हो, तो आप लोग आ सकते हो. देखेंगे जब जब कर पाएंगे तब करेंगे. ओके, बाय बाय एवरीवन. I will put up the session in YouTube.